آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو اس دنیا کے شور سے، بھیڑ سے اور دکھاوے سے کوسوں دور ہے، جہاں نہ فیشن ہے نہ فرمائش، بس سادگی ہے، سکون ہے اور قدرت کی قربت۔ یہ ہے سیاچن کے پہاڑوں کے دامن میں بسنے والا ایک چھوٹا سا گاؤں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے دل اتنے روشن ہیں جیسے برف سے ڈھکی ان چوٹیوں کی چمک۔ یہاں کا رہن سہن، بول چال، مہمان نوازی، سب کچھ بالکل مختلف ہے۔ نہ فخر نہ مقابلہ، بس ایک سادہ سی زندگی جو دل کو چھو جاتی ہیں۔ چلیے ہمارے ساتھ، آج صرف مناظر نہیں دیکھیں گے، آپ ایک احساس جئیں گے، ایک سادگی کو محسوس کریں گے جو شاید ہماری شہروں بری زندگی میں کہیں کھو گئی ہے۔ ساعتی زرامده اشوسی. Akitan hala ruju benden beş minnek silmet. دو غاتی پاکستانی نسان لیاح مغلان ست Lan. گندت ثانی کا غاتی نہیں لیاح مغلان ست کونلا۔ تو یہ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہر جگہ جنگ کا ماحول چل رہا ہے، شدید تناؤ کا ماحول ہے۔ ایسے میں آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی بھی سیاچن کے اس علاقے سے ہیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہیں، اور ایلوسیب سے بھی قریب ہے یہ گاؤں اور بارڈر سے بھی قریب ہے۔ ایسے میں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ بہت سنسان، اور جس جگہ پہ بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، جس سے بھی ملیں، ان کے زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ جنگ کا کیا ماحول ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بابا جی یہاں پہ گزر رہے تھے، یہ انتہائی فکر مند ہے۔ ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان کی اپنی زبان میں پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ کے حوالے سے کیا ان کی سوچ ہے۔ خدا سے شون سے خدا ایمت شوش شون ہنا. شو میں Çok da ایمت. وانا گا قسمی غاتی پریشانی میں ضرورت میں پنجو İnci. انشاءاللہ میں نے جو İnci. چاہ پریشان İnşallah, معصوم inşallah. آتی تھی وہ چاہ مسئلہ مین جہاں بھی آپ جائیں، پہاڑوں میں جائیں یا شہروں میں جائیں، ہر کوئی اپنی جگہ پہ دفاعی تجزیہ کار بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ بابا جی بھی ظاہر سی بات ہے، ایز اے پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، فکر مند ہیں جنگ کے حوالے سے، اور ان کو جو خبر معلومات ہیں، میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ پتہ نہیں وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہے ہے، تو اس حوالے سے اکثر لوگ کو فکر مند ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک حالات یہاں پہ نارمل ہے الحمدللہ۔ Matana jaha matfon bilata sab yine. بالکل جی، میں سیاچن کے گلیوں سے گزر رہا ہوں، یہاں سے میں اس گاؤں کے اندر داخل ہو گیا ہوں، اور ہم اس گاؤں میں جا کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگوں کے حال احوال کیسے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو جنگ کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نارمل زندگی چل رہی ہے یا کوئی خوف خطرہ محسوس کر رہے ہیں لوگ۔ تو ابھی اس ٹائم پہ ہم آ گئے ہیں جی سیاچن میں، ایک یہاں کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے بزرگ بچے یہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کر کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے جنگ کے حوالے سے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بچے، بزرگ، نوجوان سبھی موجود ہیں۔ ایسے میں یہاں پہ کچھ بزرگ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت شدید کشیدگی چل رہی ہے، اور آپ لوگ کو سیاچن بارڈر کے قریب رہتے ہیں اور ایل او سی کے بھی قریب رہتے ہیں، تو ایسے میں آپ لوگوں کے اندر کوئی خوف، کوئی ڈر ہے؟ نہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے پاک فوج بارڈروں میں کا چٹان کی طرح کھڑا ہو کر ہے، کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ادھر کاروبار کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھو آپ اس سائڈ پہ دیکھو، یہ مال موشی لے کر جاتا ہے کاروبار کے لیے، اچھا، کوئی ادھر خوف نہیں ہے، مطلب یہاں پہ معاملات زندگی بہترین چل رہی ہے؟ چلتا ہے اچھا، زندگی کی طرف سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارا فوج چٹان کی طرح ادھر محاذوں پر کھڑا ہو کر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی یہاں کے بزرگوں کی یہ جذبہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کی وجہ سے یہ لوگ سکون سے اپنی زندگی یہاں گزارنے میں مصروف ہیں، اور ہم یہاں دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ مارکیٹ کھلی ہوئے، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ جنگ جو ہے وہ لمبی چلے گی یا جلدی رکیں گے؟ نہیں جلدی نہیں چلے گا، وہ ختم ہوگا۔ اچھا، یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی؟ جلدی ختم ہوگا، اگر جلدی ختم نہیں ہوگا تو اٹمی طاقت ہے پاکستان میں، دنیا کے لیے تو ہلا کے رہے گا، ہلا کے رکھے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑا مشکل ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
दुनिया को हिलाएगा। माशाल्लाह यह अटमी ताकत वाला है पाकिस्तान। माशाल्लाह। अच्छा, तो हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सुना है कि कोई जंग हो रहा है। हमें तो अपनी ज़िंदगी में मेरे 27-28 साल की उम्र में मुझे तो कोई याद नहीं है कि इस तरह कोई जंग हुआ हो। आप लोगों को याद है इससे पहले कब कब जंग हुई थी और क्या क्या हुआ था? हम करगिल की जंग हमें याद है। अच्छा। हाँ, उसके पहले भी एक जंग हो गया था, 2 जंग हो गया था। उस वक्त हम बच्चा था। उससे आकर अभी कुछ अरसे गुजर गया, ये करगिल की जंग हो गया। अच्छा। हाँ, उससे नहीं हुआ, 20-25 साल के बाद अभी ये जंग शुरू हो गया। हाँ। अच्छा, देखिए जंग तो किसी भी कौम के लिए अच्छी चीज़ अच्छी नहीं नहीं है, है, अच्छी नहीं परेशानी है। होती है हर किसी परेशानी को। होते तो हैं। करगिल के जंग में कोई परेशानी हुई थी? यहाँ पे कोई मुश्किलात हुई नहीं, थी? कोई नहीं हो गया, यही अच्छा। है। अच्छा, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल। रहा। अभी माशाल्लाह। भी कोई हमें खौफ नहीं है। अच्छा। आ जाते हैं माशाल्लाह। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, जुमे के लिए जाते हैं। इधर बाजार है, देखो लोग बहुत खुशी के साथ इधर बैठा हुआ है, कोई सुकून से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, तो सियाचिन के जो लोग हैं उनके ख़ास तौर पर इन बुज़ुर्गों का ये जज्बा है। पाक फ़ौज के हम शाना बशाना साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि जंग के हवाले से उनको कोई परेशानी है नहीं है, क्योंकि इनकी सुकून के लिए, बच्चों की सुकून के लिए, बुज़ुर्गों की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज सरहदों पे खड़े हैं इनकी हिफाजत करने के लिए। तभी ये लोग सुकून से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वाकई में इस बात में कोई शक नहीं है जी, जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखाता आ रहा है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ख़ास कर जो सरहद के जो करीब गाँव हैं, विलेजेस हैं, उनमें पता नहीं गोलाबारी चल रही है, पता नहीं क्या क्या कितने चीज़ें उन्होंने तबाह कर दी हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है जी। यहाँ पे आप देखें, सियाचिन ग्लेशियर का करीब तरीन ये गाँव है, साथ साथ एलओसी से भी काफ़ी करीब गाँव हैं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी देखें, ये सुकून, ये ज़िंदगी, अगर यहाँ पे लोग इस सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं तो इसमें यकीनन पाक फ़ौज के उन सिपाहियों का किरदार है जो अपनी रातों की नींद ख़राब करके इन बुज़ुर्गों के लिए, इन बच्चों के लिए वो लोग हमेशा सरहद पर पहरा देते हैं। तो ये देखें जी, ये दिखाने का मकसद आपको हकीकत से आशना करना है कि सियाचिन के करीब रहने वाले लोगों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर इस जंग के माहौल में कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बच्चों? आप लोगों का नाम क्या है? मुस्कान। और इसका नाम क्या है? ये देखें जी, इन पहाड़ों में ये बच्चे, ये देखें जी, आज स्कूल क्यों नहीं गए? आज संडे छुट्टी है। माशाल्लाह। देखें जी, सियाचिन के पहाड़ों में ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ले गुड यार, नाम क्या है? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? फैसल। माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे हैं सियाचिन के पहाड़ों में, और ये बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं जी, और यहाँ पे ये लोग खेलने में मसरूफ़ हैं। ये देखें जी, अल्लाह, इन छोटे छोटे मड हाउसेस में ये बच्चे होते हैं और यहाँ पे ये लोग खेल रहे होते हैं जी। और ये एक स्टार बच्चा हमारे साथ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चे? आपके साथ मैंने आपको कहीं देखा हुआ यार। आपके बेटा। हाँ, आपके बेटा। मेरे बेटे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा बेटा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें जी, यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी होती है बच्चों की। बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं, खेल रहे हैं जी बच्चे यहाँ पे। बाकी ये देखें जी, सियाचिन में कुछ ऐसे घर बार होते हैं और यहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ भी आप देख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, एक नौजवान यहाँ पे, क्या है ये, बकरी का बच्चा है? जी, बकरी को बच्चा, ये दूध नहीं पी रहा था ना, इसलिए घर ले जा रहा हूँ। अच्छा, दूध नहीं पी रहे थे ये? अच्छा माशाल्लाह। तो आप बकरी वगैरह भी पाल के रखे हुए हैं? जी, बहुत बकरी है हमारे पास। कितने बकरे पाल के रखे हुए हैं? 5-6 बकरा है हम्म। और छोटे छोटे बकरी 2-3 है। अच्छा, 5 बकरा है, छोटे छोटे बकरी 2-3 है। जी। तो बकरा है तो ये बकरी कैसे पैदा हुई? बकरी तो आपके पास है ही नहीं। जी जी, ये छोटे छोटे है ना। असल में ये सियाचिन यहाँ के जो लोग हैं, इनकी उर्दू थोड़ा कमज़ोर है जी, तो इसलिए ये थोड़ा सा इनके कहने का मतलब कुछ और था। और यहाँ पे बच्चे देखें जी, बच्चों की तो क्या ही बात है। और शहर के बच्चों की तरह ये नहीं है जी, इनके खेलने का अंदाज़, इनके रहन सहन भी मुख्तलिफ है। इनके जैसे बड़े लोग मुख्तलिफ होते हैं इनके रहन सहन, इसी तरह बच्चों की भी एक्टिविटीज़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं शहर के बच्चों से। ये देखें जी,
ये बस दुखा है, ये बस दुखा है, ये बस दुख याली शांति कसते दुख थोत्ता थोत। बाकी सियाचिन के इन हसीन वादियों के ये नज़ारे आप ज़रा देखें जी और इसको महसूस करें। ये देखें बिल्कुल खामोशी है, ठंडी हवाएं चल रही है, नहीं यहाँ पे बिल्कुल ही गर्मी का एहसास है, न ही सर्दी। ये मौसम ऐसा है कि सियाचिन के इन इलाकों में बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है और यही कुछ महीने होते हैं कि यहाँ के लोग सुकून का सांस लेते हैं। और जैसे कि शुरू में मैंने अर्ज़ किया था, आपको हम यहाँ के सिर्फ नज़ारे नहीं दिखाएंगे बल्कि हम आपको यहाँ की सादगी, यहाँ की ज़िंदगी भी दिखाएंगे कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है। अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक नौजवान लड़का हमें यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो खेतों के दरमियान कोई काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस नौजवान से बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और इन नज़ारों में कहीं आप खो ना जाएं। इसलिए मैं जल्दी से इस नौजवान पे ही कैमरा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फूल आप किसको देने के लिए जमा कर रहे हैं? आपने किसी को कोई फूल का तोहफा देना है? नहीं देना है फूल का तोहफा, ये एक दवाई है, आप अरे? समझो एक दवाई है फूल दवाई जी। मतलब? मैदे के लिए बहुत अच्छा है ना, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और ये हम सर्दियों में अभी गर्मियों में जमा करके रखते हैं, फिर सुखाने के लिए लेकर जाते हैं, फिर हम सर्दियों में कहवा बना के पीते हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही एक नायाब चीज़ है भाई। ये देखें जी, इस नौजवान का कहना है वो इस सुनसान जगह पे ये फूल इकट्ठा कर रहे हैं। बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंडलाइन। शायद मैं तलफ़ुज़ सही नहीं बोल पाया हो, लेकिन इसका नाम यही है, डेंडलाइन। ठीक है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, ये सिर्फ आप एक फूल ना समझें। फूल जिसे डेंडलाइन रोइड कहा जाता है, बहुत सी तिब्बी खुसूसियात रखता है। उसका इस्तेमाल सदियों से हर्बल दवा के तौर पर हो रहा है। ये जिगर की सफाई करते हैं और इसके साथ साथ ये निज़ाम हज़म के लिए मुफीद, शुगर को कंट्रोल करने में मदद, सोजिश को कम करने वाला, क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा, जिल्द की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत ही एक नायाब चीज़ है जी। डेंडलाइन जिसे कहते हैं, ये पहाड़ों में होता है ख़ास तौर पर। यहाँ पे इस मौसम में यहाँ के लोग जमा करके रखते हैं, इसको सुखा के रखते हैं और इसका कहवा बना कर पीते हैं जी। और ये मतलब बहुत ही मुफीद चीज़ मानी जाती है, इसलिए ये नौजवान यहाँ पे ये इकट्ठा करने के लिए आए थे। हाय, इस सादगी पे हम मर ना जाएं भाई। आप इस एज में भी खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, तो आप हमें ये भी बताइएगा, क्या आप पढ़ते भी हैं? जी मैं पढ़ता भी हूँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। 7 क्लास में पढ़ते हैं। आपकी एज कितनी है? मेरे ये 14 साल है। 14 साल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा आप इस तरफ हो जाएंगे क्योंकि हम अपने नाजरीन को ना ये नज़ारे भी दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी 14 साल है? जी। अच्छा, 14 साल आपने पूरी इन पहाड़ों में गुजारी है? जी, सारे इस पहाड़ों में गुजारी है। तो इन पहाड़ों में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? मुझे तो बहुत खुशरा लग रहे हैं। दुनिया से दूर इन पहाड़ों में अकेले बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, माशाल्लाह, सुकून भी लग रहा है। सुकून भी लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। चले, ये ले जी आपको फूल, आप काम करते रहें माशाल्लाह। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, अल्लाह आपके इल्म में और अल्लाह आपके काम में बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया।